بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا تھا۔ شہزادہ بڑے ناز و نام میں پلا تھا اور بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا۔ جب وہ نوجوان ہوا تو ایک دوسرے ملک کی شہزادی پر عاشق ہو گیا۔ یہ شہزادی شہزادے کو اس قدر پسند تھی کہ وہ ہر وقت اسی کے خیال میں کھویا رہتا تھا اور اکثر دوسرے ملک اسے ملنے جاتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، شہزادہ شہزادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں دنیا جہاں سے بے نیاز آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شہزادے کو ایک بری خبر ملی۔ اس کا باپ شدید بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ شاہی خادموں نے شہزادے کو بتایا کہ بادشاہ سلامت کی بڑی تمنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایک بار شہزادے کو ضرور دیکھ لے۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا وہ اسی وقت جانے کے لیے تیار ہو گیا اور شہزادی سے کہنے لگا، مجھے فوری طور پر جانا چاہیے، میں تم سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ جب شہزادہ جانے لگا تو شہزادی اداس ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور ایک انگشتری دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، تمہیں یہ میری یاد دلائے گی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو تمہیں ملکہ کی حیثیت سے اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس نے اتنا کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ جس وقت وہ شاہی محل میں پہنچا تو واقعی بادشاہ آخری سانس پر تھا اور تمام لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ وہ بھی باپ کی مسحری کے پاس گیا اور غمناک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا کہ شہزادہ آ گیا ہے تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور پھر نحیف آواز میں بولا، پیارے بیٹے، میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا تم آ گئے۔ شہزادہ سر جھکائے کھڑا اپنے باپ کی بات سن رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا آخری وقت ہے، میری ایک تمنا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم پوری کرو گے۔ آپ فرمائیں، میں اسے ضرور پوری کروں گا۔ شہزادے نے بڑے ادب اور فرما برداری سے جواب دیا۔ اس پر اس کا باپ کمزور آواز میں بولا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جس کے بارے میں تمہیں کہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بادشاہ کی بیٹی کا نام لیا اور کہا، تمہیں اسی سے شادی کرنی چاہیے۔ یہی میری تمنا ہے اور یہی میری وصیت۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا وہ اداس ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرتے ہوئے باپ کو کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو باپ کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکتی تھی جس کو پورا کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور اگر وہ ہاں کر دے تو اس کی اپنی تمناؤں کا خون ہوتا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی شہزادی سے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ہوتے تھے۔ وہ بڑا پریشان تھا اور دوسری طرف بادشاہ کا آخری وقت آ گیا تھا۔ اس وقت گو اس کا دل نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مجبور تھا۔ آخر اس نے باپ کی خواہش پر اپنا پیار قربان کر دیا اور دھڑکتے دل سے کہا، ابا جان، جیسے آپ کی تمنا ہے ویسے ہی ہوگا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے کی تاج پوشی کی گئی اور اس طرح وہ تخت کا مالک تھا۔ چند روز تک بادشاہ کی موت کا سوگ منایا گیا اور جب سوگ کے دن پورے ہو گئے تو نیا بادشاہ اپنے وزیروں امیروں سے کہنے لگا، اب وعدے کے مطابق مجھے اپنے باپ کی آخری تمنا پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت اس بادشاہ کے پاس ایلچی بھیج دیے گئے جس کی بیٹی سے اس کی شادی ہونی تھی۔ جب ایلچی رشتے کا پیغام لے کر شہزادی اور اس کے باپ کے پاس پہنچے اس نے فوراً اسے منظور کر لیا۔ اس طرح چند ہی روز میں بڑی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی اور شادی کا دن طے کر دیا گیا۔ دوسری طرف جب یہ خبر اس شہزادی کو پہنچی جو شہزادے سے محبت کرتی تھی اور جسے کبھی شہزادہ بھی دل و جان سے چاہتا تھا، تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس کی بری حالت ہو گئی اور اس نے اس دکھ میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی اداس ہو گیا، مگر وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، تم اس قدر اداس کیوں ہو؟ اپنی حالت سنبھالو، ہونے والی بات تو ہو گئی، اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ پھر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تمہیں اللہ نے ہر چیز دی ہے، تمہاری جو بھی تمنا ہے مجھ سے کہو، میں اسے ہر صورت میں پورا کروں گا۔ جواب میں شہزادی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگی، ابا جان، مجھے 11 ایسی لڑکیاں چاہیے جو شکل و صورت، رنگ ڈھنگ اور قد و قامت میں بالکل مجھ سے مشابہ ہوں۔ ان میں اور مجھ میں بال برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں ان میں مل جاؤں تو مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔
बादशाह ने ये सुना तो कुछ सोच में पड़ गया। दिल में सोचने लगा, बेटी ने बहुत मुश्किल काम बताया है, ताहम वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार था। इसीलिए कहने लगा, अगरचे तुम्हारी ये तमन्ना पूरी करना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। ख्वाह कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं ऐसी 11 लड़कियां जरूर तलाश करूंगा। इस तरह वो शहजादी को तसल्ली देकर चला गया और उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में शाही खादिम भेजे जाए और ऐसी 11 लड़कियां तलाश की जाएं जो हू बहू शहजादी की हम शक्ल हो, कदो कामत में उनमें और शहजादी में कोई फर्क न हो और उनका रंग ढंग भी बिल्कुल शहजादी की तरह हो। हुक्म की देर थी, उसी वक्त पूरे मुल्क में आदमी भेज दिए गए और इस तरह शहजादी की हम शक्ल 11 लड़कियों की तलाश शुरू हो गई। इसी तरह कई रोज गुजर गए और आखिरकार ऐसी लड़कियां मिल गईं जो हू बहू शहजादी की तरह थी। उनकी शक्ल सूरत, रंग ढंग और कद्दो कामत में बाल बराबर फर्क नहीं था। अगर उनको शहजादी के साथ खड़ा कर दिया जाता था तो कोई पहचान ना सकता था कि इनमें शहजादी कौन सी है। जब बादशाह को इस बात की खबर दी गई तो बेइंतहा खुश हुआ। उसे जिस बात की तवक्का नहीं थी वो पूरी हो गई थी। वो खुश होकर बोला, लड़कियों को हमारे सामने पेश किया जाए, हम खुद देखेंगे कि उनमें और शहजादी में कोई फर्क तो नहीं। जो ही बादशाह ने लड़कियों को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके साथ ही 11 लड़कियां दरबार में पेश कर दी गई, जिन्हें देखकर बादशाह भी हैरान रह गया। वाकई उनमें और शहजादी में कोई फर्क नहीं था। उसे हर लड़की अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। वही शक्ल सूरत, वही कद्दो कामत, वही रंग ढंग और वही चाल ढाल। उसने उसी वक्त शहजादी को तलब किया और कहा, लो बेटी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी गई है। 11 लड़कियां हाजिर हैं जो हर बात में बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। अगर तुम उनके साथ खड़ी हो जाओ तो तुम्हें कोई पहचान ना सकेगा। शहजादी ने देखा तो वो भी हैरान रह गई। हकीकत में खुद उसे भी उसका यकीन नहीं था कि ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी, और अब जबकि वो मिल गई थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और लड़कियों को साथ लेकर अपने महल में चली गई। शहजादी ने उसी वक्त शाही दर्जी को तलब किया और जब वो आ गया उससे कहने लगी, शिकारियों के 12 मर्दाना लिबास तैयार करो। ये लिबास बिल्कुल एक रंग और एक ही तरह के हों, उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जवाब में दर्जी सर झुका कर बोला, शहजादी साहिबा, आपके हुक्म की तामील होगी। और फिर जब दर्जी ने शिकारियों के 12 लिबास तैयार कर दिए तो शहजादी ने 11 लड़कियों के साथ खुद भी वही लिबास पहन लिया। एक तो उन सब की शक्लो सूरत हूबहू एक सी थी, फिर कद्दो कामत में भी कोई फर्क नहीं था। उस पर उन्होंने एक ही रंग के एक ही लिबास पहन लिए थे, इसलिए अब उनमें नामों के सिवा कोई फर्क नहीं रहा था। जब वो तमाम शिकारियों का मर्दाना लिबास पहन चुकी तो शहजादी तमाम लड़कियों को अपने साथ लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुई। बादशाह ने जब उन्हें एक देखा तो वाकई वो अपनी बेटी को न पहचान सका। शहजादी ने जब बादशाह की हैरानी देखी तो खुद ही आगे बढ़कर सलाम करके बोली, आपने मेरी एक तमन्ना पूरी कर दी, अब दूसरी तमन्ना भी पूरी कीजिए। वो क्या है, हमें बताओ, हम जरूर पूरा करेंगे। बादशाह ने बेटी को प्यार से देखते हुए कहा, अब्बा जान, हमें चंद रोज के लिए इजाजत दीजिए, हम शिकार के लिए जाना चाहती हैं। शहजादी ने इजाजत तलब की, जिस पर बादशाह बोला, शिकार के लिए जरूर जाओ, मगर अपनी हिफाजत के लिए खादिम साथ ले जाओ। नहीं अब्बा हुजूर, हमें खादमों की जरूरत नहीं है, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं। शहजादी ने अर्ज किया, जो उस वक्त मर्दाना शिकारी लिबास पहनकर बिल्कुल एक खूबसूरत नौजवान नजर आ रही थी। बादशाह ने एक नज़र तमाम लड़कियों पर डाली। उसने देखा उस वक्त 12 लड़कियां नौजवानों के रूप में खड़ी थी। उन्हें कोई पहचान ना सकता था कि वो लड़कियां हैं। अब्बा जान, आप बेफिक्र रहें, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, शहजादी ने बादशाह को यकीन दिलाते हुए कहा। बादशाह का जी तो नहीं चाहता था कि उन्हें खादमों के बगैर जाने की इजाज़त दे, लेकिन जब शहजादी ने ज़्यादा इसरार किया तो वो मजबूर हो गया। कहने लगा, हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, मगर अपनी हिफाजत से एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना होना। इस तरह जब बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी तो शहजादी लड़कियों को साथ लेकर चल दी। उन्होंने घोड़े तैयार किए और सवार होकर उस शहजादे की तरफ रवाना हो गई जो अब बादशाह बन चुका था, जो कभी शहजादी पर दिलो जान से फिदा था और जिसे शहजादी अब भी बेइंतहा चाहती थी। 12 लड़कियां जब 12 हम शक्ल नौजवानों के रूप में उस शहर में पहुंचे तो जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। 12 के 12 नौजवान हम शक्ल, जरा सा फर्क भी तो नहीं। हर शख्स हैरत से उन्हें देखता और फिर देखते ही देखते सारे शहर में उनका चर्चा होने लगा। किसी तरह यह खबर बादशाह के दरबार में भी पहुंच गई। बादशाह ने सुना तो ताज्जुब से बोला, यह कैसे मुमकिन है, 12 नौजवान हम शक्ल क्यों कर हो सकते हैं। उस पर खादिम ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर ये हकीकत है,
हमने अपनी आंखों से देखा है। उसने हुक्म दिया उन नौजवानों को हमारे सामने पेश किया जाए। हुक्म का होना था कि थोड़ी ही देर में 12 हम शक्ल और हम कद खूबसूरत नौजवान दरबार में खड़े थे और दरबार में मौजूद हर शख्स हैरत से उन्हें देख रहा था। खुद बादशाह भी हैरत की तस्वीर बना हुआ था। 12 के 12 नौजवान इसी तरह मुशाबत रखते थे कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। यह हसीन नौजवान उस वक्त शिकारियों का लिबास पहने हुए थे और लिबास भी एक सा था। बादशाह की हैरत कतरे कम हुई तो उसने खुश होते हुए दरियाफ्त किया, ए हसीन नौजवान, हम तुम्हें देखकर इंतहाई खुश हुए हैं। अगर तुम्हें हमारी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो बिला तकल्लुफ़ कहो। जैसे ही उसने ये कहा, शहजादी फौरन बोली, हुजूर, हम शिकारी हैं और चाहते हैं कि हुजूर के खिदमतगारों में शामिल हो जाए। बादशाह ने यह सुना तो उसकी मुसरत की इंतहा ना रही। वो तो पहले ही ये सोच रहा था कि ऐसे मुनफरिद और अनोखे नौजवानों को उसके दरबार से वाबस्ता होना चाहिए। उस वक्त ये बात उसके वहमो गुमान में भी ना आ सकती थी कि ये नौजवान मर्द नहीं, लड़कियां हैं और उनमें वो शहजादी भी शामिल है जिसके लिए कभी वो दिन रात बेकरार रहता था। वो तो यही देख रहा था कि 12 हम शक्ल शिकारी नौजवान उनके सामने खड़े हैं। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, आज से ये 12 नौजवान शाही शिकारी होंगे और इस तरह शहजादी और दूसरी 11 लड़कियां शाही शिकारियों की हैसियत से दरबार से वाबस्ता हो गईं। उस बादशाह के पास एक शेर था जो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो बड़ा ज़हीन और अक्लमंद था। अक्लमंद होने के साथ साथ वो हर उस चीज़ से वाकिफ था जो आम लोगों की निगाहों से ओझल थी। वो पोशीदा राजों से भी बाखबर था। यही वजह थी कि बादशाह का वो पसंदीदा जानवर था। एक शाम हुआ यह कि बादशाह बैठा हुआ था, इतने में अचानक शेर पूछने लगा, आपने 12 हम शक्ल मुलाजिम रखे हैं? हाँ रखे हैं। क्या बात है? बादशाह ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। उस पर शेर बोला, क्या आपके ख्याल में ये 12 नौजवान मर्द हैं? क्यों नहीं? बादशाह ने और भी हैरान होते हुए कहा, ये 12 नौजवान मर्द हैं और शिकारी हैं। नहीं, आप गलती पर हैं, शेर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उस पर बादशाह ने ताज्जुब से शेर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या वो मर्द नहीं? तुम कैसे कह सकते हो? बादशाह सलामत, आपको गलत फहमी हुई है। ये नौजवान मर्द नहीं है बल्कि लड़कियां हैं। नहीं, हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? जब बादशाह ने यह कहा तो जवाब में शेर कहने लगा, अल्लाह ताला ने आपको मेरी जुबान समझने की ताकत दी है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने महल के पहले कमरे में मटर के दाने बिखेर दें तो आपको उसका सबूत मिल जाएगा। वो कैसे? बादशाह ने बड़े इश्तियाक से पूछा। उस पर शेर ने कहा, मर्द जब चलता है तो उसके पांव मजबूत से फर्श पर जमते हैं, इसलिए जब वो मटर के उन दानों पर से गुजरेंगे तो कोई दाना अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन लड़कियां चलते वक्त बेपरवाही से चलती हैं, उनके पांव फर्श पर निजाकत से घसटते हुए पड़ेंगे और मटर के दाने फिसल कर इधर उधर होते जाएंगे। बादशाह शेर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे ये मशूरा पसंद आया। दिल में सोचने लगा, इस तरह शेर की बात झूठ या सच साबित हो जाएगी। चुनाचे उसने महल के पहले कमरे में मटर के दाने बिखेर दिए ताकि दूसरे रोज जब शिकारी नौजवान आए और बिखरे हुए दानों पर से गुजरें तो उनके असल रूप का पता चल जाए। इत्तफाक की बात यह कि बादशाह के खादमों से एक शख्स उन शिकारियों का बड़ा हमदर्द था। जब इस बात का पता चला कि कल शिकारियों को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा तो वो भागा भागा उनके पास गया और कहने लगा, कल तुम लोगों को एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान? ये तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। शहजादी ने उससे राजदारी से दरियाफ्त किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये शख्स हमारा बहुत हमदर्द और मददगार है। जवाब में वो आदमी कहने लगा, बादशाह का वफादार शेर ये चाहता है कि वो तुम लोगों को एक इम्तिहान से गुजारे और बादशाह को दिखाए कि तुम मर्द नहीं लड़कियां हो। इतना कहने के बाद उसने तफसील बताते हुए कहा, शेर के कहने पर बादशाह ने महल के पहले कमरे में मटर के दाने बिखेर दिए हैं और अब कल सुबह तुम लोगों को बुलाया जाएगा। जब तुम मटर के दानों पर से गुजरोगे तो बादशाह इस बात का अंदाजा करेगा कि तुम लड़कियां हो या मर्द। ये बताने के साथ ही वो ताकीद करते हुए बोला, कल तुम सबको बड़ी होशियारी से उस कमरे से गुजरना होगा। तुम बेफिक्र रहो। अच्छा किया तुमने हमें बता दिया, हम तुम्हारे बहुत ममनून हैं। शहजादी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। फिर जब वो शख्स चला गया तो शहजादी ने सारी लड़कियों को जमा करके उन्हें इस बात से मुतल्ला किया और साथ ही ताकीद की, कल तुम सबको बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। जब तुम उस कमरे में से गुजरो तो अपने पाँव मजबूती से फर्श पर रखना ताकि मटर के दाने इधर उधर फिसलने न पाए और बादशाह का शक दूर हो जाए। शहजादी, आप इत्मीनान रखें, हम में से हर एक चौकस रहेगा।
और पूरी एहतियात से चलेगा। लड़कियों ने शहजादी को इत्मीनान दिलाते हुए कहा और शहजादी मुतमईन होकर दूसरी सुबह का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही सुबह हुई, शाही खादमों ने आकर उन्हें बताया कि आप लोगों को बादशाह ने तलब किया है। वो तो पहले ही से तैयार थी, लिहाजा जैसे ही उन्हें पैगाम मिला वो उसी वक्त बादशाह के महल में पहुंची। जब वो पहले कमरे में से गुजरने लगी तो उन्होंने देखा कि वाकई वहां मटर के दाने बिखरे हुए थे। बहर सूरत वो तो उसके लिए पहले से तैयार थी। वो सब बारी बारी कमरे में से गुजरी। उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लिया और अपने पाँव उस मजबूती से फर्श पर रखते हुए इस तरह गुजरी कि मटर का एक दाना भी इधर से उधर न फिसला, और वो सब कमरे से निकल गई। ये देखकर बादशाह दिल में अपने आप से कहने लगा, शेर ने गलत कहा है, ये तो सब मर्द हैं। चुनांचे जब वो शेर के पास गया तो उससे कहने लगा, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि वो लड़कियां हैं, वो तो सब मर्द हैं और मटर के दानों पर से मर्दों की तरह गुजरे हैं। उस पर शेर बोला, बादशाह सलामत, उसने झूठ नहीं कहा था, शिकारी वाकई लड़कियां हैं और मर्दों का भेष बदले हुए हैं। फिर वो उस इम्तिहान से कैसे निकल गई? बादशाह ने सवाल किया, जिस पर शेर ने कहा, वो इम्तिहान में इसलिए पूरी उतरी कि वो जानती थी उनका इम्तिहान लिया जा रहा है। उन्हें इस बात का पहले से इल्म हो गया था। इतना कहने के बाद शेर बोला, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो अब आप कमरे में चंद चरखे रखवा दें। उससे क्या होगा? उससे कैसे पता चलेगा कि वो औरतें हैं? बादशाह ने शेर की बात काटते हुए पूछा। उस पर शेर ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, आदमी चरखों पर कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन औरतों को उनमें खास दिलचस्पी होती है। लिहाजा जब वो कमरे में से गुजरेंगी तो बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो से उनकी तरफ देखेंगी। इससे आप बखूबी अंदाजा कर सकेंगे कि वो लड़कियां हैं या मर्द। बादशाह को शेर की ये तजवीज़ पसंद आई। वो कहने लगा, ठीक है, कल ऐसे ही करेंगे। उसके बाद बादशाह के हुक्म से महल के पहले कमरे में एक तरफ चंद चरखे रखवा दिए गए। शेर को इस बार पूरा पूरा यकीन था कि अब उनकी पोल खुल जाएगी और वो अपने असल रूप में सामने आ जाएंगी। मगर इस दफ़ा भी लड़कियों का हमदर्द शख्स उनके काम आया। जैसे ही उसको पता चला कि अब शेर के कहने से उन्हें इस नए इम्तिहान से गुजरना है तो वो फिर भागा भागा उनके पास गया और कहा, कल तुम्हें फिर बुलाया जाएगा। शेर के कहने से महल के उसी कमरे में चंद चरखे रखवाए गए हैं। तुम्हें फिर बड़ी होशियारी से गुजरना होगा, वरना शेर अपनी तरकीब में कामयाब हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, हम हर तरह से होशियार हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पहले से हमें बाखबर कर दिया। शहजादी ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर तमाम लड़कियों को ताकीद करते हुए बोली, याद रखो, कल फिर हमें इम्तिहान से गुजरना है। तुम में से कोई भी चरखों की तरफ एक नज़र भी न देखे, बस सब सीधी चलती जाए। शहजादी, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, हम चरखों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे और किसी को शक तक ना हो सकेगा। लड़कियों ने शहजादी को यकीन दिलाते हुए जवाब दिया और फिर वो सब दूसरी सुबह का इंतजार करने लगी। जैसे ही दूसरी सुबह हुई, एक शाही खादिम ने आकर इतला दी कि तमाम शिकारियों को बादशाह ने तलब किया है। वो तो पहले से ही उस पैगाम की मुंतजर थी, इसलिए जो ही उन्हें ये इतला की गई वो फौरन तैयार होकर बादशाह के महल में पहुंच गई। महल के पहले कमरे में जहां चरखे रखे हुए थे, जब वो उसमें से गुजरी तो उनमें से किसी ने एक भी चरखे की तरफ निगाह ना उठाकर देखा और सीधी गुजर गई। ये देखकर बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि शेर ने झूठ बोला है। उसे इस बात पर गुस्सा और अफसोस भी था कि बेचारे शिकारियों पर नाक शक किया गया है। यही वजह थी कि जब वो शेर के पास गया तो गुस्से में कहने लगा, तुम मेरे पुराने वफादार हो और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। बादशाह सलामत, मैंने झूठ नहीं बोला, यह बात सच है, शेर ने जवाब दिया। मगर उनमें से तो किसी एक ने भी चरखों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। वो सब के सब मर्दों की तरह सीधे गुजर गए। फिर मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? उस पर शेर ने इसरार करते हुए कहा, मैं अब भी यही कहूँगा कि वो मर्द नहीं, लड़कियां हैं। दरअसल उन्हें पहले से इल्म हो चुका था कि आज उस इम्तिहान से गुजरना है, इसलिए वो अपनी जगह होशियार हो गई थी। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, बादशाह ने नाराज होकर कहा। और इस तरह अपने पुराने वफादार शेर से उसका एतमाद उठ गया। दिन गुजरते गए और इस तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। बादशाह जब भी शिकार के लिए जाता तो 12 के 12 हमशक्ल शिकारी उसके साथ होते। बादशाह उनको हमेशा अपने हमरा लेकर जाता था और इस तरह अब वो उन्हें और ज़्यादा चाहने लगा था। एक बादशाह ही क्या, दरबार का हर शख्स उनकी बड़ी इज्जत करता था, इसलिए भी कि वो बादशाह के खास मुसाहिबों में से थे। एक बार हुआ यह कि बादशाह अपने उन पसंदीदा शिकारियों के हमरा शिकार पर गया हुआ था। सब जंगल में शिकार में मसरूफ थे। इतने में इतला मिली कि बादशाह की मंगेतर शहजादी आ रही है। ये खबर सुनते ही बादशाह ने शिकार बंद कर दिया और बोला, वापसी की तैयारी की जाए, हमारी मंगेतर आ रही है, हमें उसका इस्तकबाल करना है।
जो ही इस बात का इल्म शिकारी लिबास में मलबूस शहजादी को हुआ, उसका दिल धक से रह गया। उसे इस खबर से इस कदर दुख हुआ कि निढाल होकर चकरा सी गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बादशाह ने उसे इस तरह अचानक जमीन पर गिरते देखा तो समझा कि मेरा शिकारी किसी हादसे से दो चार हो गया है। वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरा और जमीन पर गिरी हुई शहजादी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। शहजादी उस वक्त बेहोश थी। बादशाह ने उसे होश में लाने की कोशिश में उसके दस्ताने उतार दिए ताकि हाथों को हवा लगे, मगर ये क्या, जैसे ही उसने उसके दस्ताने उतारे वो हैरत जता रह गया। शहजादी की उंगली में पहनी हुई अंगूठी ने उसे बहुत कुछ याद दिला दिया था। वो अपनी दी हुई अंगूठी को हका बका होकर यूं देख रहा था जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उसने गौर से शहजादी के चेहरे की तरफ देखा तो उसे पहचान गया। मैं उसे पहले क्यों ना पहचान सका, उसने अपने आप से सवाल किया। उस वक्त उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और अपना अहद पूरा न करने पर शर्मिंदा भी हो रहा था। वो जल्दी जल्दी शहजादी को होश में लाने की कोशिश करने लगा और जब थोड़ी देर बाद शहजादी ने आंखें खोली तो वो निदामत से बोला, प्यारी शहजादी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा फरामोश कर दिया। जवाब में शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो उसने उसे बाजुओं में लेते हुए कहा, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। हमेशा के लिए अब हम दोनों को कोई एक दूसरे से जुदा ना कर सकेगा। उसके बाद उसने फौरी तौर पर एक शाही हरकारे को आने वाली शहजादी की तरफ रवाना किया और पैगाम दिया, शहजादी, तुम अपने मुल्क वापस चली जाओ, क्योंकि पहले से ही मेरी एक बीवी मौजूद है। जिस आदमी को पुरानी चाबी मिल जाए उसे नई चाबी की ज़रूरत नहीं रह जाती। और फिर चंद ही रोज़ में बड़ी धूमधाम से बादशाह की शहजादी से शादी हो गई, जिसका मुल्क भर में जश्न मनाया गया। बादशाह ने अपने पुराने वफादार शेर को भी फिर से उसी तरह एतमाद में ले लिया था जैसे वो पहले था। वाकई शेर सच कहता था और शहजादी ने अपनी साथियों को अपनी कनीज़ों में शामिल कर लिया। यूँ ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।